fresh and see the bright opportunity in each day. With these lines, I, Anshi Gupta, student of fashion designing, Byan Institute of Skill Development, extend a cheerful warm welcome to you all on today's webinar with the topic Scope and Career in Fashion Industry and How to Launch a Startup. Bhyani Group of Colleges has been NAC accredited with A grade and came into mainstream of education in 2002 as Bhyani Girls College. And under the umbrella of Bhyani Group of Colleges, we have 15 colleges imparting its education to you in the field of science, management, IT, nursing, law, pharmacy, education, yoga, and naturopathy, and most importantly, skill development. Byan Institute of Skill Development is the most promising premier skills academy, which offers world-class industry-based hand-on skill training in line with Skill India mission of Government of India, along with empowerment of girls' education. In this, we have skill courses like BWOC fashion designing, mass communication, yoga, jewelry, etc., along with diploma and advanced diploma also. I feel honored to welcome our today's esteemed guest, Ms. Manogya Arora ma'am. Ma'am has done postgraduate professional diploma in fashion design from Milan, Italy, masters in human resources and MCOM in accounts. Ma'am is a founder of label Masturi by Manogya, in which clothing is all about celebration and joy. Each designer garment has an ultra feminine look with fresh color palettes and details. The main focus is on providing affordable designer clothing, which is effortless and comfortable. Before starting this webinar, I would like to thank our Chairman, Dr. Rajiv Byani sir, Director Academic, Dr. Sanjay Byani sir, Director Research and Development, Dr. Manish Byani sir, Principal, Dr. Neha Pandey ma'am, HR Head, Ms. Renu Tandon ma'am, and all the HODs and respected teacher for giving me this opportunity to host this webinar and organizing these types of great session for the students. Now let's begin with the webinar. I request Ms. Manogya Arora ma'am to start with this session. Ma'am, kindly unmute yourself and enlighten us with your valuable words. The today's topic, as you all know, is scope and career in fashion industry. So basically, fashion industry is all about glamour and looking good, giving good garments to people, and what different you can make basically, and how creative you are. आप कितने creative हैं, कितना आप differently सोचते हैं, उसके बारे में है fashion industry. And it is a very very booming industry, and उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे, because fashion industry is such an industry that is a necessity. Basically, clothing is a necessity for everyday life, and it is very important for everyone that आज when you are on Instagram, when you are on Facebook, or in whatever profession you are, you need to look good. आपको अच्छा दिखना है, and आप अच्छा दिखना चाहते हैं, it gives you a lot of confidence. So fashion industry is booming day by day. So let's move forward that how and why it is booming, and what you all people have scope for. So let's see. So fashion in designing has become very popular in India in the last few years, and many people are now considering at a career choice. Right? आप लोग सब यहाँ पे अपने careers को बनाने के लिए आए हैं, and I think you will not be get disappointed at all. जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे and आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, तो nobody is going to stop you from the success. So why it is that fashion designing and fashion industry is booming? Because with the economic prosperity, the average income of Indians has increased. Hence, the people have better lifestyles compared to the past, and they can afford to spend more than on their attire. As a result, there is an increased demand for professionals who can design and create garments, dresses, and attires to cater the taste of people from different walks of life. So yes, it is right, I think, because different walks of life are today when I work, and बहुत सारे टाइप के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, एंड उनकी बहुत अलग अलग डिमांड्स होती हैं. इवन तो अगर आप कलेक्शन बेस्ड वर्क करते हैं, तो उसमें से भी वो क्या पिक करते हैं, यू डोंट नो. So it's just totally that they need new garments, new style, and how they can look different from the crowd. So this is very important to understand. And basically, the boom in the fashion industry is because that they have everybody has this.
the income has increased and so the spending power has increased. आज आपके पास पैसे हैं तो आप उस चीज को स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं. So further, let's see that this graph shows, basically it's a technical thing, that this graph shows basically that how the per capita income has been increased with time. So now the thing is that in this year it is a little low because of the pandemic, but if you see that in the past it has really boomed, and till they are just hoping that it will go above 8.6. So it was 8.6 in 2017 to 2019. So it's a very good growth rate, basically, because if you have good spending power, then people will come in market, they will buy things, be it anything, like in fashion or in any commodity, they will buy more and more, and it will grow. And in the next graph, I would like to show the GDP. Basically, these data are very important, because if you don't know about these data, then you are lacking behind. Because if you not know आपके इंडिया में क्या चल रहा है, आपका बिजनेस कैसे, और बिजनेसेस बूम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको क्या कमोडिटीज अगर मार्केट में वो कितनी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कितना उसका स्टॉक मार्केट में आ रहा है, या क्या सर्कुलेशन है, इफ यू डोंट नो दिस, देन अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो यू हैव हाफ नॉलेज. So in this also, the GDP is growing, as we can say. So more manufacturing is being getting done. So why is more manufacturing is getting done? You can see the increase within the time. Like it's a 10 years of data, and we can see that it has grown so much. So because things are, people are buying commodities and they are focusing on new products, and people are advancing in technology. So everything is important to know before you start something, and before you are into going into something, you should research a lot in every and each aspect. So further, like how much of the fashion industry worth like in 2020? So as we can see, the global market, apparel market is projected to grow in value from 1.5 trillion US dollars in 2020 to about 2.25 trillion dollars. So it's just like a kind of a double thing. So I think there is a lot of opportunity for fashion industry to grow, and it is a very booming industry. ये बहुत boom करेगी आगे भी, and इसमें मैंने ये भी stats डाला है. There will be 17 million more jobs are going to come. So it's very good for people who are doing fashion designing, that they have these such of opportunities coming up. So it's a very good chance that you guys have. So as you can see that the scope of fashion designing in professions in India. So as a fashion designer, we think we can only be fashion designer. हाँ हम fashion designing कर लिया है तो fashion. No, there are like more scopes for you. You can really become a fashion illustrator. So I was going through some websites after the lockdown, and I encountered few of the websites that they are जो कि पे कर रही हैं per hour basis पे in dollars. So it is so amazing, and on that they it's very good. I would mention the websites for you guys that can really help you up if in the beginning. So you can just make it's a free profile. आप लोग free profile बना सकते हैं, जैसे Upwork पे, People for Hire. These are websites जो आपको provide कर रही हैं वर्क, एंड ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है बेसिकली. सो एक फैशन डिजाइनर के लिए ये लिमिट नहीं है कि मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ या मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे को यही काम मिलेगा. नहीं, you can work anywhere in the world for the world, sitting here right now. And I will share more of my examples and experiences about it, that how sometimes get some work बिल्कुल कहीं travel करते हुए I can get work. People are really very this thing that आप fashion designer है, they just know हाँ अच्छा fashion designer है, तो they take my number. So they're so interested that yes, कभी ना कभी तो हमें fashion designer की जरूरत पड़ेगी ही. So let's continue this, that fashion illustrator is a person, हम आगे understand करेंगे. And there are few more things like fashion stylist, fashion coordinator, consultant, and a merchandiser. So I have explained it here. You all must be knowing कि fashion designer क्या करते हैं, तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. But still, they are coming up with the latest trends. They study and they design, बहुत creative होते हैं.
and with a positive attitude, they're going to be certainly be rewarded by the talent. So their talent is very important. If you're creative, then nobody can stop you if you are making garments that are जो कि थोड़े डिफरेंट हैं दिखने में, कुछ नया है उनमें, या आप किस तरीके से, अभी जैसे सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी अपकमिंग टॉपिक, सो हाउ यू आर क्रिएटिंग दोज गारमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप एक स्टार्टअप करते हैं एंड आपके गारमेंट्स अगर डिफरेंट नहीं है, इफ यू आर जस्ट कॉपीइंग समथिंग, तो प्लीज डोंट गो विद दैट. डोंट कॉपी थिंग्स. बी, अगर हल्का सा भी उसमें कोई चेंज है, हल्का सा भी आपका कोई एडिशन है या आपका टेस्ट है, तो प्लीज उसको पुट इन कीजिए. एंड कभी भी अपने आप को, अपने टैलेंट को डाउट मत कीजिए, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग 10 people will come to you and say, no, we don't like your garments, no, we don't want to buy. So what, you don't like it, many people will like it. इट्स बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज कि बहुत टाइप के कस्टमर्स होते हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं जिनको इतनी डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. एज अ फैशन डिजाइनर योर बेसिक्स शुड बी क्लियर, योर नॉलेज शुड बी क्लियर. आपको जो भी कॉलेज में सिखा रहे हैं वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपको हाफ नॉलेज है. And so further, fashion illustrator is a person who sketches the ideas. So जैसे आप लोग अभी फाइनल्स में है, तो यू मस्ट बी नोइंग, अभी तो आप लोग सीख गए होंगे टेक पैक्स बनाना. सो अपवर्क एंड जो मैंने वेबसाइट्स मेंशन की थी, डिजाइन फॉर हायर, सो उन पे आप जस्ट ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है उसके ऊपर कि द पीपल पोस्ट कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन टेक अप दोस प्रोजेक्ट्स जिनमें टेक पैक बन सकता है, या एंड दे आर पेइंग रियली गुड. आप प्लीज जाके दिवस देखिएगा. एंड आई थॉट दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप लोग अभी फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो यू मस्ट उस चीज को यूज करना बहुत जरूरी है, या फिर वहां जाके एक आइडिया लीजिए कि लोग क्या काम कर रहे हैं. ये बहुत जरूरी है. दूसरों का काम से सीखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप उससे ये सीखते हैं कि हम कहाँ पे अपने आप को रोक रहे हैं और हम कहाँ तक जा सकते हैं. तो जाने की तो कोई लिमिट नहीं है, बट स्टॉप करने की अपनी एक लिमिट है. तो प्लीज सर्च करते रहिए, नए नए डिजाइन देखते रहिए. डोंट स्टॉप योरसेल्फ फॉर एनीथिंग इन लाइफ. सो आप एक फैशन इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, एक फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं. अब स्टाइलिस्ट कौन होते हैं? सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है, the people who help the models dress, prepare and showcasing the creation of designs in different fashion shows. So it's not limited to fashion shows basically. अभी इंस्टाग्राम पे एंड एफबी पे, सोशल मीडिया पे नया ट्रेंड चला है. एवरी सेलिब्रिटी इज ड्रेसिंग अप. हर कोई ड्रेसअप कर रहा है, हर किसी को नए गारमेंट्स चाहिए. सो आई थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर दैट. सो फैशन स्टाइलिस्ट क्या करते हैं? They are a bridge between fashion designer and the celebrity. So what they do, you can if some of the fashion stylist contacts you, you can contact them and you can give your garments to them and they will give it to some celebrity. So they help style people that this particular brand garment will suit you on this occasion. तो आप स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं. अगर आपको फैशन की नॉलेज है, ट्रेंड्स की नॉलेज है, तो बिल्कुल आप फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं. आप बहुत अच्छा तैयार होना जानते हैं, तो आप दूसरे को भी तैयार कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट यू कैन बिकम अ फैशन कोऑर्डिनेटर. सो फैशन कोऑर्डिनेटर इज अ पर्सन जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कोई शो है या कोई एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी है, कोई ऑर्गेनाइज करा है शो, उसके ऊपर आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरीके से उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया जाए. एंड उसमें जैसे आपने फैशन शोज देखे होंगे जिसमें गारमेंट्स पहन के रनवे पे वॉक करते हैं, तो वो सब एक फैशन कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करता है. बिकॉज बैक स्टेज बहुत चीजें होती हैं जो नॉर्मल आप नहीं मैनेज कर सकते. एक डिजाइनर डिजाइनिंग मैनेज करेगा या क्या, तो उसको एक फैशन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना पड़ता है ताकि वो उस चीज को, इवेंट को कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि उसको नॉलेज है कि हाँ, अगर फैशन डिजाइनर के साथ मैं कैसे अपनी नॉलेज को पेयर अप करूं और एक उसको हेल्प कर सकूं, पूरा आपका इवेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं. तो आप फैशन कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज फैशन कंसल्टेंट. सो कंसल्टेंट इज दैट यू आर जस्ट कंसल्टिंग पीपल. आप लोगों को राय देते हैं कि वो किस तरीके से
अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा जैसे इंडियन आइडल है या बड़े शोज हैं, सो पीपल आर रियली एकदम से चेंज हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ऑडिशन के टाइम पे कैसे आए एंड इन द एंड दे आर लुकिंग प्रिटी एंड उनके कपड़े एंड एवरीथिंग गेट्स चेंज, उनका स्टाइल चेंज हो जाता है। तो दे बिकॉज ऑफ द फैशन कंसल्टेंट्स, बिकॉज फैशन कंसल्टेंट्स के पास सारा नॉलेज होता है, दैट इज द ट्रेंड नॉलेज एंड द फैशन नॉलेज, आपकी फिजिक पर्सनैलिटी। तो इफ समबडी वांट्स इज वर्किंग लाइक आपका क्लाइंट है जो वर्क करता है एंड नॉर्मली ऑफिस जाता है, आपके पास आता है मेरे को कुछ कपड़े सिलाए, सो कपड़े स्टिच करवाने हैं, कपड़े कस्टमाइज करवाने हैं या डिजाइन करवाने हैं उसको, सो हाउ यू गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन टू चेंज द इमेज टोटली? सो if a fashion consultant is there, he will or she will just change that person's appearance to a better level, वो उसको एक better looking provide करे। आपको काफी जनों से जैसे नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से वो लोग चेंज हो गए एंड उनके गारमेंट्स कैसे थे पहले एंड अब वो क्या पहन रहे हैं। इट्स जस्ट आई थिंक देयर सम कनेक्शन एरर कमिंग अप, या सो यू कैन बिकम अ फैशन कंसल्टेंट। आप कंसल्ट कर सकते हैं लोगों को कि वो कैसे बेटर लगे। तो मेरी क्लाइंट थी, तो आई एम नॉट अ फैशन कंसल्टेंट बट आई डिड सम कंसल्टिंग टू हर एंड शी जस्ट अप्रिशिएटेड मी आल्सो। वो नॉर्मल कपड़े पहन के जाती थी एंड शी हैड अ बिजनेस, सो आई जस्ट टोल्ड हर कि प्लीज आप अपना स्टाइल चेंज करके देखिए थोड़ा, एंड वेरी पोलाइटली आई जस्ट टोल्ड हर दैट हाँ प्लीज आप चेंज कीजिए एंड आपको शायद इससे बेनिफिट हो। एंड इट रियली हेल्प्ड दैट कि उनको बहुत बिजनेस में क्लाइंट्स मिले एंड उनको उनकी अपीयरेंस चेंज हो गई बेसिकली, तो शी बिकेम मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव दिखना इज नॉट बैड। आप आजकल अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं आप कैसे दिखते हैं, बट यू नो यू शुड ऑल्सो वेरी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। अगर आपका स्टार्टअप भी है तो स्टार्टअप के बाद भी आपको अपनी पर्सनालिटी हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज की, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल, क्योंकि लोग आपको लुक अप करते हैं, दे लुक अप टू यू दैट आप कैसे दिख रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, सो हाउ कैन दे कनेक्ट टू यू। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो आपको बहुत प्रेजेंटेबल और अच्छा दिखना चाहिए। So you can become a fashion merchandiser next. So merchandising is a very ongoing and field. So fashion merchandisers fashion trends को study करते हैं and उसके हिसाब से कपड़े बनाते हैं, fashion products बनाते हैं. They even give you forecasting knowledge and merchandisers का काम ज़्यादातर export houses में रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। So analyzing the past and the latest trends along with the sales data that comes to the key deliverables in the site. So I will just read this further जब हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे. So what are the career opportunities in fashion designing? Career कैसे बना सकते हैं आप? So कहाँ आप मतलब like if you are like not ready for a startup, so definitely you want to go for a job or something after fashion designing. So where should you look for a job? आपको कहाँ पे job देखनी है? So it is the garment and the textile export houses definitely, because export houses के पास bulk में काम होता है and there is a lot of opportunity for fashion designers to work there. एंड आप मर्चेंडाइजर की तरह वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, बट मर्चेंडाइजर का वर्क ये रहता है कि जो आपका बायर है वो आपको बोर्ड्स देते हैं, दे गिव यू मूड बोर्ड्स एंड सो यू हैव टू decode and make a collection out of it. So till the collection is approved, उसके बाद का जो भी वर्क होता है to till the hand the shipping, till the shipping आपका वर्क रहता है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, बहुत हार्ड वर्किंग वर्क होता है एक्सपोर्ट हाउसेज में। एंड देयर इज लाइक अ ह्यूज, आपके पाइल्स ऑफ क्लोथिंग बनती है अराउंड 2000, इतना ऐसे एक गारमेंट के 2000 पीसेस बनेंगे इस तरीके से। सो अब डिजाइनर फैशन डिजाइनर स्टोर्स, जैसे कोई डिजाइनर है बहुत, अब ही इज अ बिग डिजाइनर लाइक मनीष मल्होत्रा, तरुण तलानी एंड अदर बिग डिजाइनर्स जो भी हैं, तो उनके साथ आप वर्क कर सकते हैं, उनके स्टोर्स के लिए कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। and next is the television and film industry. So you all must be very aware of it कि television पे किस तरीके से fashion has been changing, लोग उसको follow करते हैं and people come to you and ask you ये हमारे को इस तरीके से कुछ आप differently create करके दीजिए। तो the television and film industry is very
वेरी अपकमिंग इंडस्ट्री एंड उसमें फैशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें बेसिकली आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी होती है एंड कॉस्ट्यूम्स में कैरेक्टर के स्टडी करके करना होता है। तो आप जो भी काम करें स्टडी करके करें, रिसर्च करके करें, इन डेप्थ जाके करें, तभी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिकॉज इफ यू डोंट नो द अदर एस्पेक्ट्स then you don't know anything. So and the further is boutiques जैसे अगर आप एक छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आपकी कैपिटल लिमिटेड है, तो boutiques आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर फैशन डिजाइनर, जिसमें वो एक स्मॉल लेवल पे अपना डिजाइन जो भी है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो वो किसी और बुटीक के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, जैसे किसी फैशन डिजाइनर के अंडर वर्क कर सकते हैं जिसका बुटीक है। क्योंकि एज यू नो दिस इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, सो फ्रॉम भले आपने छोटे से स्टार्ट किया हो, बट विद टाइम इट विल ग्रो। सो एवरीबडी नीड मोर पीपल। सो बुटीक्स हैं, उनमें आप वर्क करके अपना नॉलेज ले सकते हैं एंड देन मे बी यू कैन स्टार्ट अप विद योर ओन। सो इट्स जस्ट लाइक दिस। एंड फर्दर डिजाइनिंग फॉर रिटेल चेन्स, जैसे बड़ी चेन्स हैं, जैसे फैशन एट बिग बाजार है, जो बहुत कम रेट्स पे अपने गारमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। इससे भी बड़ी चेन्स हैं जो जैसे आपका शॉपर स्टॉप हो गया, और भी इनका आपका पैंटलून्स, तो दीज आर रिटेल चेन्स, दे आर लाइक कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड्स एंड पुटिंग देम अंडर वन रूफ। सो रिटेल चेन्स हो गई, तो उनके लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, एज यू आई हैव सेड, जैसे आप बुटीक का है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप किसी के अंडर भी वर्क कर सकते हैं, देन उसके बाद खुद का खोल सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में ही आपके पास कैपिटल है तो आप खुद का खोल सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट दैट बिफोर एनी ऑफ द स्टार्टअप जस्ट टेक नॉलेज, क्योंकि एक इन डेप्थ नॉलेज होना वर्क के बारे में, वर्क सिनेरियो के बारे में बहुत जरूरी है। और वो बहुत हेल्प करता है फ्यूचर में आगे जाने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में अभी अभी आए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े स्टार्टिंग में, बट आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। सो स्टार्टिंग इज ऑलवेज लाइक दिस, कि ऐसे नहीं कि हाँ हमने काम स्टार्ट किया इट विल बूम, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। जब मैंने अपना फर्स्ट कलेक्शन निकाला था या मैंने अपना स्टोर ओपन किया था, तो इट वाज लाइक गारमेंट्स मैंने अपने डिजाइन करने स्टार्ट किए, सो फ्यू ऑफ देम सोल्ड आउट, सो इट वाज अ पॉजिटिव रिस्पांस फॉर मी दैट यस आई अंडरस्टैंड। बट उससे पहले मैंने बहुत जगह पे इंटर्नशिप्स करी, अपना खुद का भी वर्क स्टार्ट किया, कर चुकी थी मैं पहले ही। 5 years मैंने अपना बुटीक किया था, बट दैट वाज विदाउट डिग्री, एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस दैट विद डिग्री एंड विदाउट डिग्री व्हाट इज द डिफरेंस। एक बार ये ओवर हो जाए, then I'll just share more of my experiences with you. So the next is teaching in an institute that offers courses in designing. So definitely अगर आपके colleges हैं, वहाँ पे भी आप अपनी knowledge share कर सकते हैं, fashion designing के बारे में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। So this is all actually, and further what are the challenges? So there are certain challenges in this field, but uh, they will not stop you from becoming what you are now. कभी भी आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप यूनिक हैं। सो आपको एक तो मीटिंग डेली डेडलाइंस आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगी। अगर आपकी डेडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, तो आपको कस्टमर ट्रस्ट नहीं करते, और हो सकता है आपको उससे लॉस भी हो जाए। तो आपको डेडलाइंस के बारे में बहुत अच्छा मतलब एक पूरा प्लान आउट करना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस डेडलाइन तक मेरा काम, या उससे पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि डेट ऐसे आई है एंड उसके आप जस्ट ऑन दैट डे आप कंप्लीट करें, नहीं। बिकॉज अगर आप शायद 2-3 दिन पहले, या ठीक है अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर है या कोई ऐसे ऑर्डर है, तो आप कम से कम ट्राई कीजिए कि 1 वीक पहले खत्म कीजिए, ताकि उसके अंदर आप ट्रायल दे सकते हैं उनको, उनको बुला के ट्राई करवा सकते हैं, और भी चेंजेस होंगे तो वो करके दे सकते हैं। तो आपकी एक लॉयल्टी और आपका जो हार्ड वर्क है वो दिखता है उसमें, एंड हाउ पंक्चुअल यू आर, कितना ओबीडियंट है आप, कितने अच्छे तरीके से आपने डेडलाइन को फॉलो किया, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्लाइंट पे हमेशा। सो बी इट इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आप एक्सपोर्ट हाउस में हैं, आपका खुद का वर्क है, आप किसी के अंदर, तो एक डेडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग डस्टी रोड्स
to reach the local markets for procuring materials. ये थोड़ा टफ होता है, but it's not at all tough, it's very enjoying. ये बहुत enjoy करते हो आप जब आप मेहनत करते हैं एंड आप जाके मटेरियल सर्च करते हैं. मटेरियल्स के बारे में नॉलेज आपको फुल होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस दैट समबडी इज कमिंग एंड टेलिंग यू कि ये मटेरियल है और ये वो मटेरियल नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब मैं बुटीक पहले विदाउट डिग्री लर्न कर रही थी एंड मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे फैब्रिक के कई शॉप्स पे मैं जाती थी तो मुझे फैब्रिक नॉलेज नहीं होती थी. मैं ये समझ ही नहीं पाती थी कि ये एक्चुअली रियल फैब्रिक है या नहीं है, इसको किस तरीके से देखना है. जब मैंने डिग्री ली तो मुझे ये पता चला कि फैब्रिक के टेक्सटाइल्स के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं एंड कुछ आप टेस्ट करते हैं उनके किस तरीके से. ये सारी नॉलेज आप लोगों को भी अभी हो गई होगी. तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई आपको फूल नहीं कर सकता क्योंकि प्रोक्योरिंग मटेरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यही आपका कॉस्टिंग का बेस बनता है. अगर आपकी कॉस्टिंग अच्छी है, लो है, मतलब आप कम में परचेज करते हैं तो आपको प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं. तो प्रोक्योरिंग मटेरियल्स इज वेरी गुड. दूसरा, कस्टमर का ट्रस्ट आप विन करते हैं और आपका क्वालिटी हमेशा दिखाई देता है. सो दीज ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट. ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत मैटर करती हैं. आज हम जब कोर्स कर रहे होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हम ये पढ़ रहे हैं हमें कहाँ काम आएगा. पर जब हम एक्चुअल लेवल में आते हैं, हम खुद स्टेप आउट करते हैं और मार्केट में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सब चीजें जो हमें कॉलेज में सिखाई हैं वो सब काम में आती हैं. So, next is dealing with workers. Yes, because dealing with workers is a challenge. आज शायद हम जो कॉलेज में सीख रहे हैं वो लैंग्वेज है, जो ले मैन लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं, जो वर्कर्स की लैंग्वेज होती है, वो आपको शायद थोड़ी डिफिकल्ट पड़े. बिकॉज जब आप वर्कर्स के साथ काम करते हैं तो उनकी लैंग्वेज और उनका बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है. काफी चीजें वो अलग तरीके से बोलते हैं और उनको आपकी बात समझ नहीं आती और आपको उनकी बात समझ. तो इसके लिए स्टार्ट वर्किंग विद वर्कर्स. स्टार्ट वर्किंग विद व्हेन यू आर इन कॉलेज. आप अपने टीम बनाना स्टार्ट कर दीजिए. आप अपने वर्कर्स के लिए लुक अप करने लग जाइए. भले आप स्टार्टअप नहीं करें, but take small projects that किसी just for knowledge, take small projects. Like it's not necessary कि आप कॉलेज में हैं तो आप कोई वर्क नहीं कर सकते. आप स्मॉल प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किसी रिलेटिव का वर्क ले सकते हैं या किसी का भी वर्क लेके उसको एग्जीक्यूट करना सीखिए. तो इट इज अ वेरी गुड नॉलेज यू विल गेट. डीलिंग विद वर्कर्स, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, सो दे विल ट्रस्ट यू और दे विल चीट यू. बिकॉज वर्कर्स आर समवेयर. जैसे आज मेरे पास नॉलेज नहीं थी तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मुझे अपने वर्कर को कैसे समझाना है. पर डिग्री के बाद आई हैड दैट नॉलेज. मैं आज पैटर्न में चेंजेस कर पाती हूँ. मैं आज खुद पैटर्न्स बना पाती हूँ जो शायद पहले मैं मास्टर्स वगैरह से नहीं बना पाती थी और उनको मैं बोलती थी कि आप बना के दीजिए, फिर वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाता था. बट नॉलेज आने के बाद मैं उनको टीच कर पाती हूँ. मैं किसी से फूल नहीं हो सकती इस इंडस्ट्री में बिकॉज मेरे पास नॉलेज है. सो एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, बट आपकी नॉलेज भी मैटर करती है. सो मैनेजिंग अ टीम एफिशिएंटली. अगर आप लोग एक टीम है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज को एग्जीक्यूट करने की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम आपके साथ काम करे. अगर क्योंकि टीम इज अ पिलर, ईच मेंबर इन द टीम इज अ पिलर. अगर एक भी पिलर इधर उधर हुआ, आपका जो भी आपने मेहनत करी है वो सब आपकी वेस्ट जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनेज अपनी टीम को करें और ट्राई करें कि हमेशा आपके पास एडवांस नॉलेज हो. सबसे कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन रीडिंग. मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है हर बार एंड इट रियली हेल्प्स. अगर आपकी टीम के मेंबर्स आप पे लुक अप करते हैं तो वो आपकी सुनेंगे भी. तो बिकम अ पर्सन जिसको लुक अप किया जा सके, जिसके पास. मैं रतन में मैंने वर्क किया है, रतन टेक्सटाइल्स में, एंड वहाँ पे हमारी टीम थी, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट था. वहाँ पे बहुत टाइप के कॉलेजेस के और भी बच्चे थे. और बट आई फील दैट कॉलेजेस. तो मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं क्या अर्न कर रही हूँ या मुझे क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द. नो, आई वांटेड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर. जो ऑर्डर था उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया. सबसे पहले मेरा कलेक्शन रेडी था एंड इट हैपेंड दैट कलेक्शन
पहले रेडी होने का फायदा ये था कि और टीम मेंबर्स जो थे और जो ग्रुप्स थे जो हमारे बनाए हुए थे दूसरे मूड बोर्ड के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि हम क्या करें। बट मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपनी कलेक्शन को चेंज मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ, उसमें नई चीजें कर सकती हूँ। एंड सब वर्क, अगर मेरी टीम मेंबर्स वर्क नहीं कर रहे थे या मुझे ऐसा लगता था, तो मैं उनको इंस्पायर करती थी अपने काम से, तो वो अपने आप ही वर्क करते थे। सो एक ये बहुत बेनिफिट होता है, अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और हार्ड वर्किंग है, तो लोग आपको लुकअप करते हैं। तो ये प्लीज आप अपने करियर में अप्लाई कीजिएगा। So job of for responsibilities, yes, this is the point that it is very important. बहुत responsibility का काम है, किसी का function है, अगर आपकी ड्रेस ढंग से रेडी नहीं हुई तो उसका फंक्शन स्पॉइल हो सकता है। किसी का बल्क ऑर्डर है, किसी कंपनी का बल्क ऑर्डर है, अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको आपको तो लॉस होगा ही होगा, उनको भी लॉस हो जाएगा, और आपकी जो इमेज है वो भी स्पॉइल हो जाएगी। सो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, उसको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डेडलाइन से, सब चीज को फॉलो करते हुए चले। सो लेट्स सी, अब जो भी चैलेंजेस हैं ये तो आप ओवरकम कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिए। मे बी फर्दर आपको, हर इंसान को डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं, तो वो आप मेरे को पता है कि बहुत अच्छे से कर लेंगे डील उनसे। तो लेट्स सी, अब द टॉपिक हैज कम, लॉन्चिंग योर स्टार्टअप। सो कुछ एक ब्रीफ नॉलेज दूंगी जो थियोरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे साथ शायद और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, सो उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक मॉड्यूल बता रही हूँ मैं स्टार्टअप के लिए। सो a career in fashion designing is considered as financially rewarding and has become very popular with people with creative mindset. It is normally looked as a field full of glamour, though the field is full of very intense competition and huge number of challenges as well. But however, there is a wide scope of fashion designing in India as well as abroad. So ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, एंड ये आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। सो अब अगर अपन एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो क्या स्टेप्स रहते हैं? सो दीज आर द स्टेप्स। ये बुक वाइज स्टेप्स हैं, बट ये काफी रियलिटी को भी कनेक्ट करते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे, सुनेंगे। सो क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल, understanding customer segment, value propositions, channels, revenue systems, key resources, key activities, customer relationship, key partners, and legal identity. So मैं आगे डिस्कस करूंगी इनके बारे में। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक बुटीक ही कर रहे हैं या स्मॉल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिक बिजनेस मॉडल्स हैं, ये कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर शायद अगर आप ग्रो कर जाए लाइफ में, आपके पास बहुत कैपिटल आ जाए, अच्छी कैपिटल आ जाए, और आप उसको वर्क को धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इनके लिए आपको हर टाइप का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। सो एज वी नो, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, दैट इज मेक्स फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। आप फिनिश प्रोडक्ट्स लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं एंड फिनिश प्रोडक्ट्स में उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे आप अगर एक सिंपल एक फैब्रिक लेके, रॉ मटेरियल इज द फैब्रिक एंड फिनिश प्रोडक्ट इज द गारमेंट, एंड देन यू इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट्स बाय करता है मैन्युफैक्चर से, एंड रिटेलर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड एक aggregators रहते हैं, the aggregator makes the products its partners and sell their services and products under its own brand. So आप जैसे खुद का कोई आपसे कांटेक्ट करने, ये ऐसा हो सकता है कि कोई लोग आपसे कांटेक्ट करने भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक छोटे लेवल पे हैं तो आप बड़े होने का वेट करें। आप छोटे लेवल पे भी हैं तो आपको लोग आते हैं आपके पास, एंड दे वांट कि किस तरीके से आप उनके साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो आजकल जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, काफी ओगान है, पर्नियास पॉप, सो कितने डिजाइनर्स उसके अंडर रूफ में हैं, और वो अपना एक ओन ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं, करते हैं, बिकॉज पर्निया कुरैशी, शी इज आल्सो अ फैशन डिजाइनर। तो उन्होंने काफी डिजाइनर्स को अपने अंडर लेके अपना एक पोर्टल ऑन किया, तो वो चीज है, जैसे उन्होंने अपना, उनका एक बिजनेस कंसेप्ट डिफरेंट था। दूसरा ये करते हैं कि जो एग्रीगेटर्स होते हैं वो पार्टनर्स बना के अपने ही लेबल से लॉन्च करते हैं, अपनी ही ब्रांड के अंडर लॉन्च करते हैं, और जो कमीशन होता है बीच में वो अर्न करते हैं। तो रिटेलर्स होते हैं, आप रिटेलर्स जानते ही होंगे,
वो होलसेलर से सामान लेते हैं एंड रिटेलिंग करते हैं, पब्लिक को डायरेक्टली बेचते हैं। फिर फ्रेंचाइजी है, और फ्रेंचाइजी इज अ टाइप ऑफ लाइसेंस दैट ग्रांट्स अ फ्रेंचाइजी एक्सेस। तो आपका मे बी एक ब्रांड है, तो आप फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आपका ब्रांड है, तो आप उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि लोग आपके पास आते हैं कि आप हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम दूसरे स्टेट्स में या दूसरी जगह पे आपका जैसे स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो आप फ्रेंचाइजी और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनके पास फ्रेंचाइज का, एंड उनको अपने मतलब वो, अब जैसे मेरा ब्रांड है तो वो दूसरे स्टेट में ओपन कर सकते हैं उसी नाम से, because you can't copy anybody's name. It's an illegal act, and इसके लिए आपको पूरा आपका पेपर वर्क होता है, and आप फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो देर आर मैनी फ्रेंचाइजीज, आप पढ़िएगा कि किस तरीके से फ्रेंचाइजीज ओपन होती हैं, और ये कभी आप फर्दर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड देर इज अ ब्रिक एंड क्लिक, सो दीज आर कंपनीज जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, उनसे आप परचेजिंग कर सकते हैं। एंड ब्रिक इज द वॉल एंड क्लिक इज द ऑनलाइन थिंग। सो अगर आप ऑनलाइन भी उनसे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, उनके स्टोर दोनों तरह अवेलेबल होते हैं। कई बार होता है कि आप ऑनलाइन गए एंड वो गारमेंट पसंद आ रहा है, तो आप उसके स्टोर में, नियर बाय स्टोर में जाके भी उसको परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज, तो विच काइंड ऑफ मॉडल you want to follow, so depends, it depends on that, the capital, the resources, everything depends on that. So this is a basic framework. So further understanding customer segment क्या चीज होती है। आज आप एक कमोडिटी बनाने की सोच रहे हैं, पर यही नहीं पता किसके लिए बनानी है, कौन सी एज के लिए बनानी है, और क्या उनके इंटरेस्ट होने चाहिए, जो हम शायद अपने क्लाइंट बोर्ड में समझते हैं। तो कस्टमर सेगमेंट इज द क्लाइंट बोर्ड बेसिकली, कि मैं इसके लिए पर्टिकुलरली इतनी एज के गैप के लिए इस उसकी इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, सब चीजों को लेके कस्टमर सेगमेंट डेवलप होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो कस्टमर सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करें, क्योंकि उससे आपको बहुत वे मिलता है, यू विल गेट मोर वेज टू क्रिएट समथिंग दैट, और उससे टारगेट होने से ये होता है कि उस कस्टमर को वो चीज पसंद आती है, उसके बिकने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो यू मस्ट नो हु इज योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर के बारे में सब पता होना चाहिए। So, and this is the next thing is value propositions. Value propositions is the commodity, product or service जो भी आप provide करने वाले हैं customers को उनकी needs को satisfy करने के लिए। तो value propositions help us decide what kind of products are to be acquired or made. So, आपने कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ लिया, उससे आपको क्लियर हो जाएगा मुझे क्या वैल्यू करनी है, क्या वैल्यू प्रोडक्ट बनाना है, क्या मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं उसको किस तरीके से डिजाइन करूं या किस तरीके से मैन्युफैक्चर करूं। अगर यहाँ पे डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में तभी नॉलेज हो पाएगी जब आपका कस्टमर सेगमेंटेशन आपके सामने होगा। सेकेंडली, कस्टमर चैनल्स हेल्प कि आज प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, कैसे पहुंचेगा वो, किस तरीके से हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मोर ऑफ द मार्केटिंग कम्स। आजकल मार्केटिंग इज अ वेरी अपकमिंग थिंग। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी ब्रांड कहीं छुपी हुई है, कोई इसको देख नहीं पा रहा, तो आपके वैल्यू भी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कैसे सेल करेंगे। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, हेल्पिंग कस्टमर्स टू एवेल्युएट द कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन। जब तक कस्टमर के पास वैल्यू नहीं पहुंचेगी, तो वो इवेल्युएट कैसे करेंगे, वो जानेंगे कैसे आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर के पास आपकी कमोडिटी पहुंची ही नहीं, तो वो समझेगा कैसे। अलाउइंग कस्टमर्स टू परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम मार्केट के लिए बनाते हैं, कुछ हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं कि हाँ, तो उसमें और इसमें डिफरेंस कैसे करेगा कस्टमर जब उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। तो कस्टमर्स को ये अलाउ करता है, ये चैनल्स अलाउ करते हैं कि उसके पास मेरा प्रोडक्ट पहुंचे। तो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आज मैं वर्क खोल रही हूँ, पर मुझे यही नहीं पता, आज मेरे पास कैपिटल भी पड़ी है, मेरे पास सब पड़ा है, पर मुझे यही नहीं पता कि मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होंगी, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा।
जब मैं पैसा लगा रही हूँ तो मैं होप करती हूँ कि वो पैसा आएगा भी, एंड दैट मीन्स द प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट। अब वो किस तरीके से आएगा, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारे प्रॉफिट को बना सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैं ये बोलूंगी जरूर कि स्टार्टिंग में हर स्टार्टअप के अंदर 1 ईयर तक आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ज्यादा आपको इनकम होगी, बट आपकी ट्राई कीजिए कि भाई अगर आपका स्टार्टअप आपने ओपन किया है तो 1 ईयर के आप इस तरीके से प्लानिंग कीजिए कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं सरवाइव कैसे करूंगी। सो हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, किस तरीके के आप क्या आप किस तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। की रिसोर्सेज, ये सबसे जरूरी है। आज आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, आपको यही नहीं पता होता कि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं एंड उनकी क्या कॉस्टिंग निकलेगी। सो जब आप एक स्टार्टअप करते हैं, प्लीज उसको लिखें, क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसके बारे में पूरी तरीके से पता करें। एक एक छोटी से छोटी चीज के बारे में पता करें कि ये चीज भी, क्योंकि एक छोटी चीज आपका पूरा काम स्टॉप कर सकती है। आपके रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्सेज कहाँ सस्ते मिलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट आपकी रिसोर्सेज से ही होती है, और आप जो उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं अगर आपके रिसोर्सेज सही रेट पे बाय हो तो इट्स नॉट अबाउट रॉ मटेरियल्स, बट आज जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको मशीन्स चाहिए होंगी। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योर, पहले आप अपनी कैपिटल देखिए, फिर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कीजिए कि किस तरीके से मैं अपनी कैपिटल को अपने रिसोर्सेज में लगा सकती हूँ, क्या ये इतनी सफिशिएंट है। अगर आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप बड़ा वर्क कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि खोलते ही आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोलना है, आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके मशीनरी बढ़ाइए, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ाइए, बट हर चीज का रिसोर्सेज का आपको पता होना चाहिए। जब कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, उस दिन नहीं आने चाहिए, वहां पे पहले से होने चाहिए, ताकि आप पूरी तरह प्रिपेयर हो। आज आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप प्रिपेयर होके जाते हैं कि मुझे ये आंसर आएगा या क्वेश्चन आएगा तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि की रिसोर्सेज अगर अच्छी तरीके से नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ी नुकसान में जा सकते हैं। बिकॉज मे बी, ठीक है, आपके पास मे बी इतना टाइम नहीं हो कि वो उसको प्रोक्योर कर सके उस टाइम पे जब आपका कोई अर्जेंट ऑर्डर है, तो रिसोर्सेज होने चाहिए। आप जब अपने कस्टमर से कोई डील करते हैं या आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप फुली उसके लिए रेडी हैं, आपकी रिसोर्सेज हैं आपके पास, और आप कर सकते हैं उसको एग्जीक्यूट, तभी वो ऑर्डर लीजिए। सो फर्दर, की एक्टिविटीज, की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर बिजनेस में जैसे एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे आज अगर मान लीजिए बुटीक है तो एक आपका आपका सेक्शन होगा जहाँ पे स्टिचिंग होएगा, एक जहाँ पे आपका एम्ब्रॉयडरी होगा, एक जहाँ पे आपके फिनिश प्रोडक्ट्स चेक किए जाएंगे, और डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। अब उन एक्टिविटीज के अंदर आपका कितना आपका एनर्जी और कैपिटल लग रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना एक फ्रेमवर्क रेडी करना है स्टार्टअप से पहले, इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रख के कि अगर मेरे पास, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका लोकेशन क्या है। आपको ये भी एक जरूरी पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी कि आप कौन सी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, उस जगह का रेंट कितना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो स्टार्टअप है उसमें वहां पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो माइंड में होनी चाहिए स्टार्टअप रखने से पहले। उसके बाद आप रिसोर्सेज देख सकते हैं अपने, आप अपने कस्टमर्स सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, पेपर पे जस्ट पेन इट अप, आपको उसको सब चीजों को एक एक पॉइंट को लिखना है, आपको भले ही वो छोटा पॉइंट हो पर वो लिखना है, और उस चीज के बारे में प्रिपेयर हो जाना है जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज ब्रांड एंड लीगल आइडेंटिटी, ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप एक लेबल लॉन्च कर रहे हैं या ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉपीड। सो आप किसी भी सीए फॉर्म के पास जा सकते हैं एंड अपना उनसे नेम रजिस्टर करवाइए, सबसे पहले अपनी फर्म को रजिस्टर करवाइए और एक लीगल आइडेंटिटी लीजिए।
जिसमें होता है जीएसटी नंबर। ये बहुत एक ड्रॉबैक हो जाता है कई बार, क्योंकि जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, बेसिकली जिनके पास ये 15 डिजिट नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, उनके लिए थोड़ी लॉयल्टी ज्यादा होती है क्लाइंट्स के। क्लाइंट सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट से अश्योर्ड, एक तरीके से गवर्नमेंट फर्म है ये, तो हम उसके साथ वर्क करना चाहते हैं। अगर कल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और आपके पास 15 डिजिट जीएसटी नंबर नहीं है, या आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, कई जनों को यही पता नहीं होता कि बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करना होता है, तो करंट अकाउंट ओपन करके उसी में ही आपके सारे पेमेंट्स जाते हैं, उसी से आपको ये जीएसटी पे करना होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ब्रांड एंड लीगल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है एक लॉयल बिजनेस बनाने के लिए, एक स्टार्टअप करने के लिए। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए प्लीज। और this is the end of the project, and thank you for listening to me so patiently. So I will Uh, just stop sharing it. Yeah. Thank you so much, Yo ma'am, your presentation about the career and scope of fashion designing and to start up for a new startup. It's really amazing. और उसमें जो मैम स्कोप और करियर में आई थिंक जो स्टूडेंट्स को हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर हम सोसाइटी की बात करें कि उसमें क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी क्या है, काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं तो अब आगे जाके आप पता नहीं कुछ Hello. कर Ma'am. पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये फील्ड इतना अच्छा नहीं है, इसमें से सिर्फ आप बुटीक ही ओपन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और मैम ऐसे Ma'am, I think there is some network. तो Ma'am, आप please दोबारा बोलिए, मैम मैं ने थोड़ा सुन नहीं मैम पाई। आपने जो करियर एंड स्कोप में जितने भी आपने पॉइंट्स क्लियर किए कि एक स्टूडेंट को क्या क्या कंफ्यूजन्स होती है, इनफैक्ट फैमिलीज को भी मैम बहुत कंफ्यूजन होती है इस फील्ड को लेके, और अभी Yes, भी है। अभी भी जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल। को ये बोला जाता है कि ना तुम लोग तो सिलाई सीख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और हम और आपका लाइक एक पॉइंट बहुत ही अच्छा था जिसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि काफी आजकल काफी सारे बुटीक्स ओपन कर चुके हैं, और वो जो बुटीक्स है Yes, उसमें वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं, उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं लिया होता है, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैम वो हमें कोई भी चीज ओपन करने के लिए उसमें एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम मेरी तरफ से बहुत important है। यस, और मैम स्टूडेंट से हम पूछेंगे, उनके भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी Yes, ma'am. फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा होता है, एडवांस डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन होता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की तो चलिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैम जो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, जैसे हम लोग खुद ये चीज पेरेंट्स हमको बोलते हैं, बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम 1 साल का डिप्लोमा करना और मैं फिर फैशन डिजाइनर बन जाऊंगा या मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। व्हाट इज द डिफरेंस Yes. बिटवीन द लाइक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड द ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू यू? So for me, I think diploma is a very short course, and जो graduation है वो बहुत lengthy 3 साल का अपना वो होता है course, and उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए सीखने को मिलती हैं, जो चीज शायद एक short period of time में सीखने को नहीं मिले, बिकॉज यू आर टू यंग, राइट। अगर आप जस्ट एक कॉलेज के बाद मतलब आपने जस्ट एक डिग्री लिया है, मतलब सॉरी स्कूलिंग किया है, यू आर कमिंग बैक टू द कॉलेज कि अब मेरे को क्या करना है, तो यू वांट टू डू अ फैशन डिजाइनिंग, सो 3 years कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सो गुड। आप यंग हैं, प्लीज गो फॉर द ग्रेजुएशन, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो 3 साल के अंदर आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे 3 साल लग गए? ये सोचिए कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेशन हो रही है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया प्रेजेंटेशन में, प्लीज गो एंड प्लान योर स्टार्टअप। आप उस बीच में अपना स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं। आप जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कुछ अपने ही वर्क रिलेटेड काम कर सकते हैं कि भी उससे आपको एक्सपीरियंस होता रहे। तो जब तक आप 3 साल बाद बाहर निकलते हैं, यू आर लाइक रेडी टू गो कि हाँ, एंड जस्ट इफ बिकॉज 3 years का टाइम इसलिए भी जरूरी बोलती हूँ मैं, बिकॉज डिप्लोमा में हर चीज बहुत फास्ट बताई जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू रिलेट। तो डिप्लोमास आर गुड फॉर दोज पीपल जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, एंड मास्टर्स करके दे आर लाइक अब हमें क्या करना है, बिकॉज आज मेरे साथ ये हुआ, आई एम डबल मास्टर्स, इफ यू हैव सीन इन द बैनर,
I'm done with masters, but I'm from commerce field. I don't know where to use that knowledge. I don't want to do a job. मुझे जॉब में नहीं जाना था, मैं एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहती थी. तो मैंने स्किल बेस्ड कोर्स चूज किया, जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं. सो बिकॉज ये जरूरी है, तो मैंने 2 साल का डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, एंड द कोर्स वाज रियली गुड. हम लोगों को बहुत सीखने को मिला, बट बहुत फास्ट पेस पे सीखने को मिला. सो फास्ट पेस पे सीखने का मतलब ये है कि आप अपनी चीजों को ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे. तो डिप्लोमास आर गुड जिनको कुछ जल्दी करना है, पर अगर आपके पास टाइम है, प्लीज गो फॉर ग्रेजुएशन, क्योंकि उसमें एक एक चीज के लिए बहुत टाइम मिलता है, आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड जब तक आप बाहर निकलते हो, यू बिकम अ गोल्ड. एक्चुअली यू बिकम अ गोल्ड एंड यू नो. तो डिप्लोमास आर ऑल्सो वेरी गुड. पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, राइट. आपके पास कितना टाइम है कि आप अपने फ्रॉम द स्टार्टअप और फ्रॉम द जॉब कि ये ड्यूरेशन है, इस बीच में मैं कितना टाइम दे सकती हूँ. अगर आप 2 साल दे सकते हैं, 1 साल, गो फॉर डिप्लोमा. एंड इफ यू आर रेडी टू वर्क, लाइक लर्न या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत डीपली जाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं. मतलब जो 3 साल का कोर्स है, दैट इज गुड फॉर यू. Yeah, ma'am. Yeah, true. And ma'am, I have one more question also. Then I'll Yes. ask students to ask some questions. I have question that कि अभी जो अपना COVID situation चल रहा है, right? And उस Yes. situation में जैसे जो बच्चे जिनको internship करनी थी और जो internship नहीं कर पाए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और उनको अगर internship ना करके उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, या उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्री की क्या डिमांड होती है एक फैशन डिजाइनर को लेके? यस. सो जैसे मैंने बताया आपको कोविड सिचुएशन के लिए, कोविड सिचुएशन के लिए मैंने ये बताया आपको कि आप वर्क अनलिमिटेड है. आज मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना. मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, एंड फैशन डिजाइनिंग इज सच अ नाइस फील्ड दैट मैं ट्रैवल कर रही थी. मेरे पास जो बैठी थी, एक मैम बैठी थी, एंड शी वांटेड कि वो कुछ देख रहे थे मोबाइल पे, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ऐसे ही कि क्या करते हो. आई टोल्ड हर आई एम अ फैशन डिजाइनर. तो शी वाज सो इंटरेस्ट. अच्छा, फैशन डिजाइनर है, अच्छा प्लीज, है ना, मेरी तो वेडिंग है घर में, प्लीज आप मेरे को स्टिच कर. I am traveling. I am not going from a business mind setup, but still I'm getting order. She took my number, she gave me the order, and I executed it and I gave it to her. So it was unbelievable कि आज ठीक है, अगर आप internships अभी नहीं कर पा रहे हैं, prepare yourself on your own. अपने आप को अपने हिसाब से prepare कीजिए. जैसे आप अपने पैसे जोड़िए, आपकी पॉकेट मनी थोड़ी जोड़िए, कुछ डिजाइन करने की कोशिश कीजिए, खुद ही डिजाइन करिए, लेमैन से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वर्क चलता है ज्यादातर. बिकॉज डेफिनेटली कोविड के कारण कोई भी आपको पर्सनली या फिजिकली अप्रोच नहीं करना चाहता. सो व्हाट यू कैन डू, मेक सम ग्रुप ऑन, या ब्रॉडकास्ट बनाइए किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसमें डिजाइन सेंड कीजिए, लोगों को बताइए कि आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, एंड अपनी टीम डेवलप करना स्टार्ट कीजिए. इस मीन वाइल जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ. द इम्पोर्टेंस इज कि एक बड़े मार्केट में उतरने से पहले, कैसे हम स्विमिंग करने से पहले, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप कैसे तैयार करते हैं खुद को, आपका सारा प्रिपेयर करते हैं, सीखते हैं चीजें, फिर आप बड़े लेवल में एंटर करते हैं. तो वही चीज हर चीज के साथ जाती है. प्लीज स्टार्ट लर्निंग. अपनी पॉकेट मनी जोड़िए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट कीजिए ऑन योर ओन. उसमें जो भी मिस्टेक्स होंगी वो सब लर्निंग मिस्टेक आपको लर्न कराएंगी, क्योंकि आज धीरे धीरे वर्क करने से ही लर्न होता है. एंड डिग्री का ये बेनिफिट है कि आपको उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी. आप लोगों को करेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये गलत है, ये सही है. काफी रिसोर्सेज मुझे मालूम पड़े कोर्स करने के बाद कि किस तरीके से एक गारमेंट था, जब मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने कोर्स नहीं किया था, मेरा एक ऑर्डर आया था, एक गारमेंट था, उस पे मास्टर जी ने चौक मार दिया था, एंड इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव गारमेंट. तो चौक मारने से यू कैन वॉश दैट गारमेंट, वो उसमें एम्ब्रॉयडरी हुआ है पूरा, एंड वो चौक सस्टेन हो गया वहीं पर, एंड वो हटा ही नहीं. आई हैव टू रीमेक इट. बट आफ्टर कमिंग इनटू फैशन डिजाइनिंग, मुझे ये पता चला कि ऐसा चौक आता है जो आयरन से ही मिट जाता है. दैट इज द वैक्स चौक आई एम टॉकिंग अबाउट. सो
ऐसी चीजों के बारे में आपको जब पता हो जाता है तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। यू कैन रियली वर्क ऑन योर ओन। अभी इंटर्नशिप नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करें खुद के बेसिस पे। Yes. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। My question is that, ma'am, as we know, if we are having a capital or if we are having money, experience, everything, then we can build up our own brand. But if Yeah. some people don't have money, no clients, and if they don't have experience also, then how could they build up their own brand? So that, and I will not prefer that you build up a brand. मैं बार बार यही बोल रही हूँ, knowledge and experience is very important in this field. If you are not having that, अगर आपके पास knowledge and experience नहीं है तो प्लीज आप पहले वो लीजिए, करिए, छोटा वर्क करिए, भले खुद करिए या कहीं जाके सीखिए, बट लर्न करेंगे तभी आप आगे के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एकदम से जो चैलेंजेस आते हैं उसमें फिर आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। जैसे आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट ले लूं एंड मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली जब वो चीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो मेरा क्लाइंट का मेरे पे से ट्रस्ट हट जाएगा एंड वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। तो फर्स्ट, भले ही आप छोटी जॉब करें छोटे टाइम के लिए, कहीं फ्री में इंटर्नशिप करें। अगर आपको जॉब लगता है कि मैं जॉब लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, हर जगह 2-2 महीने की इंटर्नशिप करें, 3-3 महीने की इंटर्नशिप करें। गो एंड चेक what people are working, keep your eyes on the trend, and हमेशा फोरकास्ट के साथ वर्क करना चाहिए। ये मैं बोलूंगी कि हमेशा माइंड में रखिए कि किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, फोरकास्ट क्या है किसी भी चीज के अंदर, बी इट फैशन इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री। Yes, ma'am. तो वो बहुत हेल्प करता है आपको सक्सेसफुल बनने में। सो यू कैन, अगर आपका ब्रांड ओपन करने से पहले यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। फर्स्ट जस्ट प्रिपेयर, आप अपनी हर चीज जॉट डाउन करिए, लिखिए, वही इम्पोर्टेंट है। लिखने के बाद आप देखिए कि क्या आप रेडी हैं, आपके पास इतना है। अब ठीक है, कैपिटल भी नहीं है आपके पास, तो उस चीज को जमा कीजिए पहले। उस सब चीज प्रोक्योर होनी चाहिए। स्टार्टअप से पहले मैंने आपको क्या बोला, सब चीज आपके पास होनी चाहिए तभी आप स्टार्टअप कीजिएगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि हम हमारी सोसाइटी में मैम कि ये बोला चला जाता है कि हमें अगर फैशन डिजाइनिंग करनी है तो एज अ हॉबी हम उसको फैशन डिजाइनिंग में हमारी सोसाइटी और फैमिली हमें इम्प्रूव करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ भी तुम कर सकते हो। बट एज अ जॉब अगर हमें हम चाहते हैं कि हम अगर जॉब करें या फिर हमारा खुद का बिजनेस करें, तो हमें ये बोला जाता है कि हमें ये सोसाइटी, ये इंडस्ट्री या फिर कि ना हम फैशन डिजाइनिंग की इंडस्ट्री इतनी सेफ्टी नहीं है या फिर इतनी अच्छी नहीं मानी जाती एज ए कम्पेयर टू अदर जॉब। तो मैम उनके हम थिंकिंग कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सेफ किस हिसाब से नहीं मानी जाती? इकोनॉमिकली सेफ नहीं मानी जाती कि सैलरी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, या फिर एक विमेन सेफ्टी के हिसाब से नहीं मानी या जाती? मैम, वुमेन इसका सेफ्टी। ये या मैं आपको बताऊंगी इसका है कि जैसे हमारे सोसाइटी में आप देखिए, ज्यादातर ये बोलते हैं कि ठीक है गर्ल है तो एज अ हॉबी फैशन डिजाइनिंग करवा दो, राइट? शादी हो जाएगी तो घर बैठ के कुछ कपड़े वपड़े सिल लेगी। लेकिन अगर जॉब की बात हुई तो अगर जॉब पे जाना पड़े एज अ गर्ल, तो उसमें ये बोला जाता है कि ना भाई नहीं, एक्सपोर्ट हाउस में जाओगे या अगर किसी डिजाइनर के अंडर काम करोगे तो इतना सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा लाइक वो टेंशन रहती है पेरेंट्स को। तो उस चीज के लिए आप क्या लाइक हमारे जो भी व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट है, उनको बोलना चाहेंगे? और इनफैक्ट पेरेंट्स भी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहूंगी कि एम आई ऑडिबल? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने कोर्स शादी के बाद किया है एंड जो मेरे इन लॉज हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया करने के लिए एंड दे नेवर डीमोटिवेटेड मी, एंड मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो कई जनों को सपोर्ट नहीं किया जाता, बट ये फील्ड ऐसी है कि आप किसी के अंडर अगर जॉब भी नहीं करें तो आप खुद का ओन कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे अब्रॉड भेज सकते हैं कपड़े।
यूएस, कहीं पे भी भेज सकते हैं। मेरे खुद के कितने गारमेंट दुबई, ताइवान वगैरह जाते हैं। कई बार होता है, अब जैसे हम घर पे ही बैठे हुए हैं, बट मैं सब कुछ ऑनलाइन कर रही हूँ। मुझे कुछ भी करने की, क्योंकि बट ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना है, तो प्लीज आप छोटे खुद के ही कपड़े बनाइए, खुद के कपड़े बनाइए। पार्टीज में जाते हैं या कहीं जाते हैं, लोगों को, रिलेटिव्स को दिखाइए। आपसे कोई पूछता है कि हाँ, मैं आपने कहाँ से अपने कपड़े, बोले मैं खुद बनाती हूँ अपने कपड़े, आपको जरूर ऑर्डर देंगे वो। आपको अगर बनवाने तो मुझे बताइए, मैं आपको बना के दूंगी। तो वो, तो बेसिकली अगर आप एक छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो इट्स नॉट टू बी अ टेलर। आपको टेलर की तरह नहीं नापा जाएगा। आप वहां बैठ के सिलाई नहीं करने वाले, आप वहां बैठ करके एम्ब्रॉयडरी नहीं करें, बट काम की नॉलेज है। क्यों काम की नॉलेज क्यों है? इसलिए है क्योंकि आज अगर मेरे मास्टर जी या मेरे कोई भी मेरा एम्प्लॉय मुझे आके बोलता है कि मैम ये ऐसे नहीं होगा, अब क्या करें, तो मेरी नॉलेज ये कहती है कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता मैम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम what type of eligibility we need in career of fashion design, because हम देखते हैं कि एडवांस डिप्लोमा हो जाता है, डिप्लोमा हो जाता है, क्या इसमें ये जरूरी है कि आफ्टर हम ग्रेजुएशन हम इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें या मास्टर्स डिग्रीज भी लें हम इसमें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या कुछ पीएचडी करना चाहते हैं इस फील्ड के बाद, आप जैसे किसी कॉलेज में टीच करना चाहते हैं या कहीं पे आपका जो आप पीएचडी करके रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस वाले के लिए आप, आई थिंक आपको मास्टर्स करना जरूरी है। Yes, ma'am. Thank you so much. I think now the time is running out. So या I just wanted to thank ma'am. And ma'am, we are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experiences in the field of fashion industry. Really a थैंक यू सो pleasure मच। for us. This is the most needed topic for our students or for those who want to come into this field. And your presence and your topic is really wonderful. And थैंक यू। we really look forward to your presence on our campus. And I thank you to Anshi also. She's my student, and I really appreciate that you wonderfully conducted this session. Always put a good lot of efforts into everything you do. So keep trying, beta, and new things, and good luck for your future. So, ma'am, I think our session is over, and thank you so much once again. Thank you so much, everyone, and all the best to all the students. And please come out with flying colors. कॉलेज में प्लीज अपनी पढ़ाई पे, हर चीज पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज बाद में वो बहुत काम आएगी। एंड बस मैं यही सजेस्ट करूंगी, एंड हर चीज को स्मार्टली लीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा हर चीज में स्टडी करें, इट्स जस्ट कि आपको वो पता होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी कीजिए, और प्लीज स्टार्ट योर स्टार्टअप इमेजिनेशन। आपकी जो भी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको आगे जब तक कोर्स कंप्लीट होगा, आपके पास सब कुछ क्लियर होगा। तो प्लीज स्टार्ट विद दैट, एंड थैंक यू सो मच Vianney College and ma'am, and Manisha ma'am, Ritu ma'am, thank you so much for calling Thank me, you and it so was a much. great Our pleasure, experience to ma'am. be a part of that. Yeah, Thank you. thank you so much.